So good morning everyone. My name is Devang Ashturkar. I am currently in standard 12th and I am from Aurangabad, Maharashtra. I cleared my NDA for 146. The results were announced on 9th October. So after that I was searching now I will have to go for SSB. And I had seen some videos of Ganesh Babu sir and I was also following videos by Wing Commander Sandeep Raj sir. So I joined for the free workshop on I think 19th of October, and many of you were also there, I think. And then I thought ki this is something different, and I thought ki it is something logical, and then I should go for it. Then my journey started for the SSB. I entered the class, and our first week was of psych test, as you all know. So in that, on the very first day, मैंने इतनी वाहियात स्टोरी लिखी थी, बहुत ज्यादा वाहियात थी. एंड देन सर ग्रिल्ड मी फॉर द होल वीक, but at the end of he told me that I have a very good quality of accepting my mistakes and going forward. And so अभी ये जो स्टोरी लिखी थी तो मुझे लगा कि यार अब तो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतनी गंदी स्टोरी है, अभी ऐसे हो रहा है तो कैसे चलेगा मतलब. देन आई थॉट कि फिर एसएमएल भी करना चाहिए. आई वाज जस्ट फॉर एसएसबी, बट देन आई थॉट कि एसएमएल भी करना चाहिए. In that sense, after completing my 2 weeks of SSB, I got into SML, and it was a mind-changing experience wholly of SML. Now, basically, मैं first अपने SSB के बारे में बोलता हूँ थोड़ा सा, SSB practice, and then I will shift to SML. Okay? So basically first week साइक हुआ तो ऐसे इसमें ग्रिलिंग चली रही थी, उसी में वैट आ गया. वैट में भी बहुत सारा कचरा निकल गया मेरे इससे. सो और देन मुझे दिखने लगा कि कैसे फिर मेरे साइक में और मेरे वैट में कॉन्ग्रुएंस आ रहा है. तो कॉन्ग्रुएंस तो आ रहा था, वो नेचुरल था, लेकिन वो निगेटिव सेंस में आ रहा था. सो देन आई हैड टू करेक्ट दैट थिंग. तो सर ने बहुत मतलब सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे है ये आज तक, मतलब कहीं भी यूट्यूब पे नहीं देखा, कहीं नहीं, कुछ नहीं, ये मुझे सबसे इफेक्टिव लगा अभी तक. मतलब इस पे मैंने 1 महीना पूरा प्रैक्टिस किया था कि टाइम मैंने छोड़ दिया था, टाइम कुछ लगाना ही नहीं है बस. And then I started relating them with each other. So in that sense, all aspects of personality, means the emotional, physical, and psychological or intellectual or the value aspect. So they all are interrelated. So when you start preparing in this way, they all started coming up from your personality and it gets reflected in your stories. So after that, sir has also taught us how to analyze the story. And if my story isn't able to answer these questions, then that is of no use, because at any point of time, I didn't want the psych to get in any sort of questioning with my story. So that was my aim. ये एक मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देवांग क्या बोलना चाह रहा है कि कम्युनिकेशन का एक सिद्धांत आज सुबह मैंने बोला, it is the responsibility of the candidate to ensure that the psychologists understand your message the way you want to understand. And worst thing is psychological test में वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता. अगर उसको कोई डाउट आ जाए तो वापस आपसे पूछ नहीं सकता कि भैया ये आपने क्यों लिखा है. इसका मतलब क्या है, आपने ऐसा लिखना है कि वो उनको समझ में आ जाए. अगर समझ में आ रहा तो यस बोलो. यस सर. तो आपके कम्युनिकेशन में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, और वो चीज उसको ऐसा समझ में आना चाहिए जैसा आप उनको समझाना चाहते हो. या देवांग. सो देन गोइंग फॉरवर्ड, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सेल डिस्क्रिप्शन. सेल डिस्क्रिप्शन के लिए आपको स्वॉट एनालिसिस करना होगा. स्वॉट एनालिसिस, लाइफलाइन एनालिसिस आप जब करोगे, देन यू विल गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ योर लाइफ, and from that you can make up your self description. And obviously honest feedbacks are required from your parents also. Parents, teachers, means whatever the entities are there in it. So after doing all this, मेरा सबसे ज्यादा अटक तो मैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन में ही रहा था कि मतलब स्वॉट करने के बाद मुझे क्लियरिटी आ नहीं रही थी. So I will talk to that on later. What is self अपना स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट करके एक मॉड्यूल है जो एसएमएल का, वो कराएंगे. आप लोगों को हुआ नहीं है वो, तो आप लोगों का जब वो हो जाएगा तो आपको ये जो सीआईक्यू को रेस्पॉन्ड करना आसान हो जाएगा. प्लस लाइफलाइन एनालिसिस जो देवांग ने बोला, उससे आपका जो पूरा सीआईक्यू का जो रेस्पॉन्सेस है, आपको देखा कि आपने 10-15 क्वेश्चन एक साथ पूछे रैपिड फायर में,
तो अगर आप उसको तैयार नहीं करोगे तो आप एकदम प्रेशर में आ जाओगे। बट व्हेन यू डू लाइफ लाइन, पूरा चिट्ठा पत्थर हम उसको खोल देंगे। तो नेक्स्ट जब आपका जब भी इंटरव्यू होगा उससे पहले हम इसको करेंगे। सो दैट इज व्हाट इज रेफरिंग टू। या यस, सो मतलब these 4 tests were conducted. मोस्ट ऑफ दी टेस्ट वैट को मतलब खुद की स्टोरी को कैसे एनालाइज करना है ना, ये आना चाहिए, और यही हमें एसएसबी में सिखाया। वंस यू स्टार्ट पॉइंटिंग आउट योर मिस्टेक्स ऑन योरसेल्फ ना, सो यू आर इन द अथॉरिटी टू करेक्ट देम, बिकॉज कोई आपको बाहर से आपकी मिस्टेक बताएगा ना, आप उतनी सी करेक्ट कर लोगे, और रेस्ट यू विल थिंक योर स्टोरी इज फाइन। बट द सर्टेन लेवल ऑफ क्लैरिटी विच इज रिक्वायर्ड ना, वो जब तक आप खुद आपकी स्टोरी एनालाइज नहीं करते नहीं आ सकता, कोई बाहर से नहीं दे सकता वो। सो देन आई स्टार्टेड मेकिंग कि मेरे कुछ लॉजिकल ये मिसिंग थे स्टोरी में। एक तो निगेटिव पॉइंट्स तो थे बहुत सारे, लेकिन जो एक बेसिक लॉजिक होता है स्टोरी में वो बहुत सारी जगह मिसिंग था। सो आफ्टर दैट मैंने कॉन्ग्रुएंस और मतलब एसआरटी वैट इसमें कॉन्ग्रुएंस लाना स्टार्ट किया, एंड देन बहुत लॉजिकल इस पे लेके गया मैं स्टोरीज को। सो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मेरी स्टोरीज बहुत अच्छी हो गई, एंड बिफोर गोइंग तो मैं तो श्योर था कि मेरे स्टोरीज और वो बहुत अच्छे हैं, मुझे साइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो माय ओनली हर्डल वाज द जीटीओ। और जीटीओ के लिए मतलब सेकेंड वीक में यहाँ पे जीटीओ होता है, और मतलब एक दिन मेरा इंटरव्यू का सेशन था विंग कमांडर संदीप राज सर के साथ, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो सेकेंड वीक वाज जीटीओ। तो एक तो मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि ऑनलाइन है तो जीटीओ का कैसे होगा, क्या होगा। सो फिर सर ने अच्छा। स्ट्रक्चरल एनालिसिस करवाया, सो वो मैंने किया। एंड देन मतलब इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स दिए थे सर ने हमें, ऑनलाइन दिखाए थे, देन आई वाज एबल टू सॉल्व मेनी ऑफ देम। सो इन दैट सेंस स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज द ओनली थिंग रिगार्डिंग जीटीओ। मतलब ग्राउंड वाउंड से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन माय टीम वी वर मेनी एंड सम ऑफ देम हैड बीन फॉर कोचिंग, बट उन्हें आइडियाज आ ही नहीं रहे थे। आई वाज द ओनली वन इन द ग्रुप की जिसे आइडियाज आ रहे थे, एंड आई गॉट माय ग्रुप क्लियर दी होल मैं यहाँ पे जीटीओ। ये बोलूंगा, जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है, देखो ग्राउंड पे जाके आप करोगे तो एक ऐसा फील लगता है कि मैंने ग्राउंड पे किया है, बट द गेम इज नॉट ग्राउंड का, गेम इज माइंड का। कि स्ट्रक्चर को देख कर कुछ ऑब्जर्वेशन में शार्पनेस लाने से आपको ग्राउंड में जाने के बजाय आपका मन में ही आइडिया आ जाएगा। उससे फायदा ये होगा कि आपको ये फट्टा बल्ली के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। लीडरशिप यस सर, मतलब डेफिनेटली वही हुआ। मैं सबसे पहले स्टार्ट लाइन पे खड़ा था, बाकी लोग अंदर थे, मैं उन्हें बोल रहा था कि यार ये ऐसे लगाओ, ये ऐसे लगाओ। या हाँ मतलब ऐसा है कि अगर आपको आइडिया मन में नहीं आ रहा तो आप बाहर के रिसोर्सेज को उठाने में भागोगे, फट्टा उठा लो, बल्ली उठा लो। लेकिन फट्टा और बल्ली उठा के करोगे क्या अगर आपको आइडिया एंड नहीं आ रहा? जैसे मतलब वैसे भी बच्चे थे वहां पे कि पहले ही जाके फट्टा उठा के आगे जाके, मतलब बेसिक आइडिया आता है सबको अंदर जाने का, तो या अंदर से जब क्रॉस करना होता है ना, वो आइडिया आना मेन है। तो हाँ अंदर जाके वहां पे फंस जाते थे वो, एंड देन वो मतलब वहां पे आगे भी नहीं सकते थे और पीछे भी नहीं आ सकते थे, करेक्ट। तो दे गॉट स्टक अप इन बिटवीन। तो ये जो जीटीओ का जो पीजीटी, एचजीटी, कमांड टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क करके 4 टास्क है, इसमें ऑब्स्टिकल में ब्रिजिंग करना होता है। ब्रिजिंग 2 लेवल पे है। पहला आइडिया क्रिएशन दिमाग में, सेकंड इज आइडिया एग्जीक्यूशन बाहर में। आइडिया, एंड इन हाँ सेंस ऑफ आइडिया एग्जीक्यूशन ऐसा है कि अगर आपका आइडिया वर्केबल है ना, तो आपको एक्चुअल में जीटीओ सर वैसा करने लगाएंगे भी नहीं। अगर उन्हें लगता है कि आइडिया सेटिस्फैक्ट्री है, सो दे विल आस्क यू टू गो ऑन द नेक्स्ट टास्क। तो हमारे केस में बहुत सारी बार ऐसा हुआ कि सर ने बोला कि यस दिस इज योर आइडिया इज वर्केबल, आई एम गिविंग यू 5 seconds, गो ऑन द नेक्स्ट टास्क। सो ऐसे होता है कि मतलब कोई ग्राउंड में जाके करने की जरूरत नहीं है जीटीओ ऐसे, बस आपको वो आइडियाज आना जरूरी है। एंड फॉर दैट यू विल नीड टू हैव अ मींस ग्रेट कंसंट्रेशन इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस, वो हो जाएगा। एंड द सेकंड थिंग इज आपका जीपी होता है। सो जीपी में बेसिकली मोस्ट ऑफ अस क्या करते हैं कि उससे बहुत हाइपोथेटिकली सॉल्व कर देते हैं। दैट इज नॉट द थिंग। जीपी बहुत ऐसे हार्ड होता है ऐसे नहीं है, मतलब थोड़े से आपके डेली लाइफ सिचुएशन से अलग सिचुएशन रहेगा, लेकिन वही रियलिटी में आपको डिस्टेंस और स्पीड का अनुमान होना चाहिए थोड़ा, कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल हो सकता है। फिर एक बेसिक आपका ऑब्जर्वेशन चाहिए कि अगर
एक पेट्रोल पंप है तो वहां मुझे क्या क्या मिल सकता है, या फिर एक फेरी पॉइंट है वहां मुझे क्या क्या मिल सकता है। एंड सो मतलब आपको बेसिकली उसमें बस लॉजिक लगाना है यार। थ्रू आउट द एसएसबी यू नीड टू बी वेरी मच लॉजिकल एंड क्लियर विथ व्हाट यू से। So that is the basic thing of SSB. And then coming to GD. For GD, there is no alternative but to prepare. And मतलब यही एक पार्ट है कि जहां आप खुद से आपको जितना चाहे उतना प्रिपेयर कर सकते हो विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट किसी का गाइडेंस लिए बगैर। तो ये तो मेरा पहले से स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। मतलब मुझे इंटरेस्ट था इंडिया के जियो पॉलिटिकल रिलेशंस में, एंड देन मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हुआ इस चीज में। सुन रहे हो ना बच्चा तो पार्टी, देवांग का ये स्ट्रेंथ शुरू से ही था कि इसका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और सीडीएस के बच्चों से ज्यादा अच्छा था। मतलब कोई एक टॉपिक बोल तो देवांग का हाथ खड़ा होता था क्लास में, जबकि ये साला 11th-12th का बंदा है और वहां पे सीडीएस और टीजीसी वाले लॉस पड़े हुए। देवांग का वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट के कारण इसका ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट और इंटरव्यू का सीआईक्यू ऑन करंट अफेयर्स, जी के वो अच्छा ही होना, इंटरेस्ट था बंदे में। मतलब मेरे बोलने से नहीं, पहले से ही। और क्योंकि वो ग्रुप में इसको थोड़ा लाइमलाइट में आ गया, उसका और इंटरेस्ट बढ़ गया। दिस इज वेयर कम्युनिकेशन स्किल एंड कंटेंट के ऊपर बात हो रही है। ये आज पूरा जो सेशन था हम उसी के ऊपर रह रहे थे। और आपको पता गोसावाड़े सर के इंटरव्यू के बाद में ये कॉमन पॉइंट था कि करंट अफेयर्स जो है कमजोर है। अब ये देखो कि उसके ऊपर देवांग यू कैन आल्सो टेल हाउ डिड यू प्रिपेयर, ये इंटरेस्ट कहाँ से आया, इसके लिए प्रिपरेशन कैसा है, उसका फायदा क्या हुआ? यस सर। सो बेसिकली ना मुझे बचपन से ना न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी। सो इन दैट सेंस अगर स्कूल में भी कुछ होता था तो आई वाज एबल टू स्पीक, और मतलब जहाँ कोई बोल नहीं पाता था मैं बोल पाता था। सो आई फेल्ट वेरी नाइस कि ऐसा हो रहा है। देन इट स्टार्टेड ग्रोइंग, माय इंटरेस्ट स्टार्टेड ग्रोइंग, एंड देन आई यूज्ड टू वॉच वीडियोज ऑन लाइक खान सर जीएस, स्टडी आईक्यू। सो ये दो चैनल्स मैंने प्रोमिनेंटली रेफर किए थे अपने ग्रुप डिस्कशंस और लेक्चरेट की टॉपिक्स बनाने के लिए। दोबारा बोलो दोनों साइड, ताकि लड़के लोगों को आज बताया वही है। दोबारा यस सर। बोलो कौन कौन सा था? खान सर जीएस, यस। ये मतलब है ना एक भोजपुरी टाइप बोलता है ये बंदा, लेकिन बहुत सही बोलता है। मतलब आपको अगर कोई कंसेप्ट सीखनी हो ना, मेड बी साइंस और रिलेटेड टू इंटरनेशनल अफेयर्स, ये सारी आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी इसमें। हिंदी में बोलता है, भोजपुरी में। या एंड द सेकंड वन इज स्टडी आईक्यू। तो स्टडी आईक्यू बेसिकली फेमस है यूपीएससी आईएएस वाली जो एग्जाम्स होती है उसके लिए। सो उनका कंटेंट काफी स्ट्रांग होता है। तो मतलब दैट टू वर इनफ फॉर मी, and then I started means Sorry to newspaper. interrupt you, Devang. With your हाँ permission, sir, may I have a opportunity of interaction with him? हाँ हाँ प्लीज। Yeah. Hi, Devang. First of hi all, sir, congratulations, heartiest congratulations. thank you sir. I just wanted to know, like Devang, just tell me a few things that all this, every candidate generally in this tendering age goes through YouTube, and there are various big infrastructures available, coaching centers available throughout the country. What it made to you to land up to Babu sir, where he is not having a, although this time it was totally online, but then why you pick up this particular thing instead of going for any other else, who wherein a lot of success stories are being, with due respect to all of them, but then a lot of success stories are being read. There are GTO grounds available, there are team of assessors available. Why did you came to Babu sir, or So for that matter now, AFSOP? so means I knew Sandeep Raj sir from beginning because he was my neighbor. So he Okay. told me last year to watch videos of AFO SOP. Now, Okay. after I cleared my written, he told me to watch the videos of AFO SOP. And previously, I used to watch many videos of other academies. Okay. So in this sense, I found this AFO SOP totally different. Okay. And basically, I knew that SSB is a personality test. So I need to work upon my personality. And how Right. do I do that? I got a clear idea that AFO SOP would be a best choice for me. Okay. And then I started watching more videos. And then Okay. I made up my mind that I'm going to AFO SOP. Okay. Okay. Well, Devang, can you just elaborate a little about your background, that from where you belong to, and were you having, as you mentioned, that Wing Commander Sandeep Raj sir was your neighbor. Are you belonging to a military background? No. Means previously, before he joined Army, Air Force,
He Okay. used to live beside our house, next to our house. So I am basically from Aurangabad, Maharashtra. I am from a civilian background, pure civilian background. Just Okay. my brother-in-law, means his cousin Okay. brother-in-law, he's in army. So Okay. he was posted at NDA, and I went couple of times to NDA. So that Wonderful. motivated me to incline Wonderful. towards this field. Wonderful. Okay, so a word about SML. What does it make difference with the only SSB? And because there is a way of approaching things, and many people I generally come across that SSB is something like whatever sir has told us. So you can just differentiate between SML and SSB, and how you gave importance to SML than of SSB. And Yes, what sir. does matlab, help you? How does it help you? Yes, sir. Now, I have spoken about SSB a bit. So in that, I was very clear कि अब मुझे changes करने हैं खुद में. So changes करने ये तो आपको हर एक कोचिंग बताएगा कि आपका मतलब टैट खराब जा रहा है, ये खराब है, क्योंकि after all they are all assessors, they know what is required for the forces. So they will tell you. But उन्हें change कैसे करना है ना, ये वो आपको नहीं बताते. So in SML I got to know कि इसे change करना कैसे है. और मतलब इन ऑल सेंस ना मेरी लाइफ बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है एसएमएल की वजह से. मतलब बेसिकली हमारा एक जो वीक था वो पूरा रिलेशनशिप आपको कैसे बिल्ड करनी है इसके ऊपर था. सो इन दैट आपका एसएसबी तो 100% क्लियर हो ही जाता है. वो एसएसबी और एसएमएल अगर आप करोगे तो एसएसबी होना ही है आपका, So क्योंकि it is not एसएसबी only सर about the बोलते हैं. feedback, but also action plan. You get an action plan over FSOP यस that यस what exactly has to be done. यस. एंड एट अ वेरी इंडिविजुअल लेवल कि आपको पर्सनली पता चलेगा. एंड दैट टू ये सर आपको खुद करने लगाता है सारी चीजें. आपको लगता है कि यार नहीं करना चाहिए, छोड़ दूं, नहीं करूं, नहीं करूं, नहीं करूं, बट द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट, द मोमेंट हाफ ऑफ योर बैटल इज वॉन. क्योंकि ये ऐसी चीज है ना, ये सब जन प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ये चीजें, क्योंकि किसी को अपनी बुरी साइड देखनी नहीं होती है. सो इफ यू हैव द करेज टू टेक अप योर Everybody wants क्रिटिसिज्म. to get pampered, and they feel the हाँ person who's हाँ हाँ behaving हाँ equally with them, that institute is good, right? हाँ. सो बेसिकली आपको बहुत क्लियर आइडिया चाहिए कि अगर मुझे एसएसबी में जाना है तो मुझे खुद को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा. और मैं कितना भी डाउनग्रेड हूं, अगर मुझ में वो एबिलिटी है कि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ, देन एसएसबी विल पिक यू, बिकॉज दे हैव 4 years टू मोल्ड यू हियर First thing आफ्टर. is to accept that I am not good in something, यस right? यस. एक्सेप्टेंस इज द बेस ऑफ एवरीथिंग. Wonderful, very well said. Devang, I won't be pulling you much. Shashank, it's been a very precious morning for all of us, indeed. Devang, I would like to congratulate you on behalf of entire team of Chhatrapati Shivaji Maharaj Armed Forces Preparatory Institute. थैंक यू सर, थैंक यू सर.